God of grace and mercy, thank you for this wonderful opportunity to spread the word, your word, throughout the world. And it is a greatness that you have bestowed upon us. Very, very incredible, incredible people that we are. We have no our virtues, but because of your grace, we are giving credit to you, O Lord. Thank you for this opportunity. And Christ Gospel Church, Narayan Chal Parvani, and this is the third Sunday of October 2020, and besides me is sitting translating or interpreting the young John J. Timothy. Is accept us for the word of God, and we give all the credit, all the honor to Lord Jesus Christ, the Savior of this world, who has put himself on the cross to remove all our sins, to remove all the darkness from our life, and bring light and bring the word. And he is our good shepherd. We give honor to him and ask in the honorable name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Well, we are again thanking God for this wonderful opportunity of giving this third Sunday of October 2020 for His word. हम परमेश्वर का और एक बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस अक्टूबर के तीसरे संडे को और एक बार हमें मौका दिया है कि उनका संदेश बांट सकें. Till the 13th or 14th of April, we were not knowing that a small from the small town like Parvani, we will able to use these online services. और अप्रैल के 13 या 14 तारीख तक हमें नहीं मालूम था कि हम इस परबनी इस छोटे शहर से इस ऑनलाइन सर्विस का भी उपयोग कर सकते हैं. But God gave us the direction. God guided us, and we became encouraged that God is using us for His glory. और परमेश्वर ने हमें रास्ता बताया और परमेश्वर ने हमें किस तरह चलना है बताया और हम उत्सुक हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें, इसके हम आभारी हैं. Hidden talents from the church, from the Parvani congregation has come out. और जो छुपे हुए कलाकार थे, जो छुपे हुई कला थी, वो परबनी के कॉन्ग्रेगेशन से, परबनी चर्च से बाहर आया है. We are really thankful to God for the wonderful young people who are using their talents and giving glory to God through their talents. और हम परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद देते हैं कि जो भी यहाँ पे जवान लोग हैं वो अपना कला का यूज़ कर रहे हैं, अपने टैलेंट का यूज़ कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. Even old people who thought they would never be able to spread the word of God, coming out of their shell and giving glory to God. और यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग जो सोचे थे कि हम कभी परमेश्वर का वचन बांट ही नहीं सके, वो भी इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा अपने घरों में रहकर इस ऑनलाइन सर्विस का बाहर आके परमेश्वर का समाचार बोल रहे हैं. Those who were sick have been healed, and they are giving credit for their recovery.
और जो भी बीमार थे वो चंगाई पा गए और वो इस चंगाई का धन्यवाद दे रहे हैं। Today's sermon is based on a father's faith. और आज का जो संदेश है ये एक पिता के विश्वास पे है। How a father put his faith on God. किस तरह एक पिता परमेश्वर पे अपना भरोसा डालता है। Lord Jesus Christ used several things in his earthly ministry. और यीशु मसीह ने काफ़ी सारे चीज़ें उनका जो प्रीचिंग था, उनका जो सेवकाई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही। When he saw that he is failing in one matter, जब उन्होंने देखा कि वो एक मैटर में एक समय में जब वो फेल हो रहे थे, then he did not grumble to God. उन्होंने परमेश्वर से कुरकुर नहीं किया, but he used many methods to spread the word of God. लेकिन उन्होंने काफ़ी तरीकों से परमेश्वर का वचन बांटा है। And this father's faith in God is a famous parable of Lord Jesus Christ. और पिता का विश्वास, ये जो कहानी है, ये यीशु मसीह का सबसे फेमस कहानी है। And he really used the relationship between father and his two sons. और उन्होंने इस कहानी में एक पिता और उनके दो बेटों के बारे में किस तरह उनका जो संबंध होता है वो बताया। We have not taken the usual or routine thing of the gist of the parable, but we are using some new things in giving this sermon. और हम इस कहानी में से वही पुरानी चीज़ें, वही जो मेन थिंग्स है वो नहीं, हम इस कहानी में से कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। And you will like this new things to follow in your daily life. और ये जो नई चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं, ये आपको आपके दिन से दिन व्यवहार में आपको अच्छा लगेगा यूज़ करने में। It will give you confidence as a father and how to handle your children. और ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपको बल देगा कि आप एक पिता होने के अनुसार अपने बच्चों को किस तरह संभालना चाहिए। And you don't have to scold every time to your children. और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपने बच्चों को डांटे। And there are so many methods the father can use. काफ़ी तरीके हैं एक पिता अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। And we are seeing how this father was. और हम देखते हैं कि ये पिता किस तरह था। We have taken the base of St. Luke 15 chapter 11 to verses 11 to 32. और हमने जो आज का जो मुद्दा उठाया है बाइबल में से लिया है, लूका की किताब 15वां अध्याय 11 से 32 तक। And also we have taken one beautiful verse from the 10 Commandments, and that is Exodus 20th chapter and 12th verse. और हमने एक बहुत अच्छा वचन 10 आज्ञाओं में से लिया है, वो एक्सोडस निर्गमन 20वां अध्याय 12वां वचन। And here we see the commandment of God that honor thine father and mother. और हम यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा देखते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो। And here we see that how the younger son did not honor his father. और हम इस कहानी में देखते हैं कि किस तरह जो छोटा बेटा है, जवान बेटा है, वो अपने पिता का आदर किस तरह नहीं किया। Being a good father is a very hard job. एक अच्छा पिता होना ये बहुत मुश्किल काम है। It is a very hard thing to please
every child, every family member in your family, but the the job of a father is very tough. और एक पिता का जो काम होता है, ये बहुत सबसे मुश्किल काम है कि अपने परिवार वालों को खुश रखना, अपने बच्चों को खुश रखना, पूरे परिवार को खुश रखना। Sometimes you have to take tough stand, and your children become sad. और आपको कभी कभी बुलंद आवाज में कहना पड़ता है, या आपको कभी कभी खड़े होना पड़ता है, और आपके बच्चे आपसे नाराज हो जाते हैं। You have to stand for some principles in your family life. और आपको आपके पारिवारिक जीवन में कुछ मुद्दे होते हैं, उस पर आपको खड़ा होना होता है। Another complaint of the family that our father never keeps the time and always fouls our schedule, और spoils our schedule, you can say. और दूसरा जो कंप्लेंट आती है परिवारों में से कि हमारे पिता हमारे लिए टाइम ही नहीं देते, और जो भी हमने प्लान किया है वो पूरा खराब कर देते हैं। He really spoils our schedule. वो सच में हमारा पूरा प्लानिंग खराब कर देते हैं। But if the children understand the tough job of a father, then they will really honor their father. अगर बच्चों को सच में अपने पिता क्या काम कर रहे हैं, उनका काम किस है, अगर वो पता है, तो वो सच में अपने पिता का आदर करेंगे। He has to, he is responsible to keep many things outside in his job and as a father at home. और उन्हें अपने एक पिता होने के नाते उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑफिस की वो बाहर रखनी पड़ती है, और एक घर पे आके एक पिता की तरह उनका स्वभाव होता है। He has to leave the worry of the office at the door before he enters the home, and then just mingle with the children. और उन्हें जो भी ऑफिस में जो भी परेशानी होती है, जो भी टेंशन होता है, वो दरवाजे के बाहर छोड़कर अपने परिवार में आके परिवार के साथ घुल मिल जाना होता है। And if the wife and particularly the children understand his difficulty, they will really honor the father. अगर एक पति की पत्नी और एक पिता के बच्चे अगर अपने पिता का दुख समझ सकते हैं, तो वो सच में अपने पिता का आदर करेंगे। And here there are 2 points in this parable we are learning. और इस कहानी से हम 2 चीजें सीखते हैं। And first point is Luke 15 is a parable about a father and his 2 sons. और लूक का 15वां अध्याय जो है वो एक कहानी है एक पिता और उसके 2 बेटों के बारे में। If you look at this parable, it looks as if it is very simple and why it is included in the Bible. और आप सोचते होगे, अगर आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत साधारण कहानी है, इसे बाइबल में क्यों डाला गया। One father and 2 sons. सिर्फ एक पिता और 2 बेटे। And the younger son and elder son. जवान बेटा और बड़ा बेटा। Here we see that the younger son strayed from home, he left home. और हम यहाँ पे इस कहानी में देख सकते हैं कि जो जवान बेटा है वो घर से भटक जाता है, वो घर को छोड़ देता है। He was selfish. वो असल में खुद का अपनी मर्जी चलाने वाला था। He said to his father, "Give me my share of inheritance now itself at this moment only." और उसने अपने पिता के पास जाके ये कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, अभी इसी वक्त दे दो। And the son was rude, very rude to his father. और जो बेटा था वो अपने पिता से बहुत हठीलेपन में बात कर रहा था। And also we see he was in future his father must have given him the share of the property. और हम आगे कहानी में देखते हैं कि पिता ने उसे उसका हिस्सा जरूर दिया। But he said,
no, father, I want my share right now at this moment only. हाँ, लेकिन उसने ये सोचा कि पिता नहीं देगा, इसलिए उसने अभी इसी वक्त मुझे चाहिए बोलकर कहा। He was not ready to wait till his father willingly gave him his share of the property. और वो अपने पिता के अनुसार तब तक इंतजार करने की हालत में नहीं था, वो नहीं इंतजार करना चाहता था। And here we see the son as a root son of today's generation, young generation. और इस बेटे को, इस जवान बेटे को आज जो हम देखते हैं तो ये यहाँ की जो आज की जो पीढ़ी है, आजकल की पीढ़ी, ये आजकल की हठीली बच्चों की पीढ़ी है। And then we are going to the son, the younger son took a journey to the foreign lands. और फिर आगे हम देखते हैं तो जो जवान बेटा था वो दूसरे देशों के लिए अपनी यात्रा शुरू किया। He went there with his friends. वो अपने दोस्तों के साथ उस देश में गया। And then he spent all his money, all his share in that foreign land. और उसने उस देश में अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी दौलत उस देश में उड़ा दी। And then he realized that he has no money. फिर उसे पता चला कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। And then he said that nobody is coming to me, nobody is willing to give me money, nobody is giving me any shelter. और फिर उसे ये समझ में आया कि मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, मुझे कोई संभाल नहीं रहा है और मुझे कोई भी रहने के लिए जगह भी नहीं दे रहा है। He came to his senses. फिर वो उसे उसका दिमाग में आया। And then he remembered his father and his home. फिर उसे अपने पिता की और अपने घर की याद आई। And here we see that he started journeying back to his father's home. फिर हम बाद में देखते हैं कि वो अपने वो सब संपत्ति, सब दौलत उड़ाने के बाद वो अपने घर को, अपने पिता के घर को जा रहा था। Now coming to the eldest son. अभी हम बड़े बेटे के पास आते हैं। This eldest son, it seems that he stayed at home. और ये बड़ा बेटा हमें ये अपने घर पर रहा, ये हमें तभी दिखता है। And here we also see that he was very obedient, as if we see that he is very obedient. और हम यहाँ देखते हैं कि जो बड़ा बेटा था वो अपने पिता को बहुत आदर करता था, वो बहुत उनका आज्ञा पालन करता था। But all right, we see that from the outside, but if we see his character, then we see that he too was selfish. और हम उसे बाहर से सोचते थे कि वो आज्ञाकारी है अपने पिता का, सिर्फ उसका बाहर का रूप। जब हम उसके अंदर का बात देखेंगे तब पता चलता है कि वो भी इतना ही सेल्फिश था, वो भी उतना ही खुदगर्ज था। He too was self-centered. He thought every time of himself only. और वो खुद वो भी खुदगर्ज था, वो कभी भी अपने ही बारे में सोचता था। He every time, every moment thought of himself only. और वो हर बार, हर क्षण, हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। He was offended by the father's generosity to his younger brother. और वो उसे मालूम था कि जो उनके पिता का जो खुला व्यवहार है, मीन्स कुछ भी छुपाते नहीं, सब खुले में करते, मीन्स जो खुलापन है वो उनके छोटे बेटे की तरफ भी था। When he came back, spending all the money of his father, spending all the share, and his father was giving him grand welcome. और जब छोटा बेटा अपनी दौलत शौहरत सब उड़ा के, सब अपने हिस्से का सब पैसे उड़ा कर वापस आया, तब उसके पिता उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से उसका स्वागत कर रहे थे। But this eldest son did not like that. लेकिन ये बड़े बेटे को ये पसंद नहीं आया। And he was thinking, oh father, I stayed with you all my life, and
I did not spend any money lavishly on my friends. और वो अपने पिता से अपने मन में अपने पिता से कहता होगा कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहा, आपके साथ ही था और मैंने अब मेरे पैसों का हिस्सा मेरे दोस्तों के साथ इधर उधर नहीं उड़ाया, But I stayed with you, under you, supervising all your duties and taking all the efforts. और मैं और सबसे मेन बात कि मैं आपके नीचे था, आपके आज्ञाओं का पालन करता रहा, आपके साथ रहा और आपके जो भी काम थे वो मैं संभाल रहा था। 2 sons. 2 बेटे, Both are selfish in one way and in another way also. और दोनों खुदगर्ज है, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों खुदगर्ज है। And here the father is the central figure in this parable. और इस कहानी में, इस दाखलता में जो पिताजी है वो मेन अवतार है। What a great father he was. वो कितना महान पिता होगा। And he did not object when his younger son uh, told that I want my share of property. और आप उस पिता ने कुछ भी नहीं कहा जब उसके छोटे बेटे ने कहा कि मुझे मेरा कमाई का हिस्सा चाहिए। The father let him go as per his wishes. और उस पिता ने उसे अपनी मर्जी के अनुसार जाने दिया। He was willing to let him go wherever he wanted and then learn the lessons of his life through hard experiences. और जब वो पिताजी ये चाहते थे कि बेटा जाए अपने तरीके से जिए और अपने तरीके से जिए और जीवन के क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या मुद्दे होते वो सीख कर आए। Very hard. They are outside the world, without the shelter of your family, without the shelter of your father. How hardships are there. He wanted to teach him. और उससे पिताजी को ये सिखाना था कि बिना अपने परिवार के, बिना अपने पिता के बाहर दुनिया में किस तरह रहा जाएगा, बिना घर के किस तरह, वो जो कठिनाई थी वो पिताजी उसके बेटे को सिखाना चाहते थे। The first thing we are learning from this parable is that don't be disobedient to your parents. और जो पहली चीज़ हम इस कहानी से सीखते हैं कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, उनकी आज्ञा नहीं मानो, ऐसा नहीं, उनकी आज्ञा मानो। Don't be disobedient to your God. और अपने परमेश्वर पिता की भी आज्ञा मानो। Don't be disobedient to your Savior Lord Jesus Christ. और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की भी आज्ञा मानो। At the close of this parable, when the boy returned, the father didn't say. और इस दाखलता के आखिरी हिस्से में Younger son returned home. और इस दाखलता के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं जब जवान बेटा वापस घर को आता है। And he did not say that I told you so and you did not listen to me. और पिताजी ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझसे कहा था, तूने मेरी बात नहीं सुनी। He did not make this younger son crawl on his hands or on his knees. और वो पिताजी ने अपने बेटे को अपने पाँव छूने के लिए या अपने हाथों में चल के आने के लिए नहीं कहा। And also he did not treat him as a servant. और उसने उस बेटे को एक दास की तरह भी व्यवहार नहीं दिया। But showered lavish affection on him. और लेकिन उस पर प्यार की वर्षा उंडेल दिया। Welcomed him home graciously. और उसे अपने घर में अपने करुणा भर कर उसे घर में आने का स्वागत किया। Forgave him. और उसे माफ कर दिया। And showered affection on this lost son. और इस खोए हुए बेटे पे अपना प्यार उंडेला। Between the beginning of this parable, right in the beginning and at the end, और इस कहानी के शुरुआत में और आखिरी में we see that
this father was a waiting father. और हम देखते हैं कि जो पिता था ये इंतजार वाला पिता था। He was waiting, he was patient, he had all the perseverance, and he was waiting for this lost son. और हम देखते हैं कि पिता में का स्वभाव था, वो वेट करने का स्वभाव था, वो इंतजार कर रहा था, अपने खोए हुए बेटा कब आएगा, वो इंतजार में था। How hard it must have been to gulp the agony in his heart. और ये कितना मुश्किल होगा जो उसका जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो अपने मन में रखना। And when his lost son, the youngest son, returned home, he was not rude to him. और जब उनका जवान बेटा घर को वापस आया तब वो उनका व्यवहार उससे हठीलापन नहीं था। There was agony throughout the absence of his younger son. हाँ, लेकिन वहाँ पे जो क्रोध होता है कि उसके छोटा बेटा नहीं था, वहाँ पर क्रोध था। Second thing we are learning from this parable, that this father, very gracious, very merciful, very generous, loved both of his sons. और हम यहाँ पे जो दूसरी बात इस दाखलता से देखते हैं कि जो पिता था वो बहुत अनुग्रहकारी, दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला, अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करता था। And here we see that as father we have to love our children. और हम यहाँ पे देखते हैं एक पिता होने के अनुसार कि हमें बच्चों से प्रेम करना चाहिए। Third thing we have learned, that we have to really love our children and just pardon their mistakes. और हमने जो तीसरी बात इस कहानी से सीखी है कि हमें सच में हमारे बच्चों से प्यार करना चाहिए और जो भी वो गलती करते हैं उसे भूल जाना चाहिए। First thing we have learned, that the chapter of Luke 15 is a story about a father and his two sons. और जो पहली बात हमने सीखी थी कि जो लूका की किताब 15वां अध्याय जो है, 15 अध्याय, इसमें एक कहानी है, दाखलता है एक पिता और दो बेटों के बारे में। And second point we are learning, this is a very important point. और जो दूसरी बात हम सीख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। The father in this parable is the story representing God the Father. और जो दूसरी बात हम सीखने जा रहे हैं, इस दाखलता में जो पिता है वो असल में परमेश्वर पिता को दर्शाता है। And here we see the father as a father in the heaven. और हम जो यहाँ पिता को देखते हैं, ये असल में स्वर्गीय पिता के लिए बारे में बताता है। God is the central figure in this parable. और इस दाखलता में असल में परमेश्वर मुख्य अवतार है। The fatherhood of his father is like the fatherhood of the Father in heaven. और जो उसका पिता का जो स्वरूप था, जो पिता का स्वभाव था, वो असल में जो हमारा स्वर्गीय पिता है उस तरह के स्वभाव का था। God, heavenly Father, heavenly God is not a father like we are in this world. और जो स्वर्गीय पिता है वो असल में हमारे जो इस दुनिया के पिता है उस तरह नहीं है। But we are to be fathers like this heavenly Father. और लेकिन हमें जो स्वर्गीय पिता है उसकी तरह बनना चाहिए, वो पिता तरह बनना चाहिए। Forgiving, loving and welcoming. और पाप माफ करना और प्यार करना और स्वागत करना। And the father, the worldly father have to be, worldly fathers have to be priests at home. और जो दुनियादारी के पिता, जो दुनिया के पिता है, वो असल में घर के याजक होते हैं। Yeah, and also they have to be a religious educator to their children. और वो अपने एक पिता असल में अपने घर, अपने बच्चों के लिए एक धार्मिक शिक्षक होना चाहिए। And next thing we are learning, that you ought to give them
sound moral footing, और- sound foundation. और हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को एक एक सही तरीके की आवाज़ वाला एक सही तरीके का फाउंडेशन, वो तो जो नियम है, जो नीचे का बेस होता है, वो दे रहे हैं क्या नहीं। Fathers have to show that what they say they are doing. और हमें ये बताना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। And in the epistle of James, he says that when you are a Christian, you have to do what you say. और जब याकूब अपनी पत्री में कहता है कि अगर तुम क्रिस्ती हो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो पिता कहते हैं। And here also we are taking quoting the example of one God servant. और हम भी यहाँ पर एक प्रभु के सेवक का एक उदाहरण लेते हैं। And his name is Samuel Taylor Coleridge. और उनका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरेज। A very great God servant. और ये एक बहुत प्रभु के महान सेवक थे। And once his friend came to him और एक बार उनका दोस्त उनके पास आया and he said, I have not taught anything on the religious side to my children. और उस दोस्त ने कहा कि मैंने मेरे बच्चों को धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया, Or social life or etiquettes or manners. और सिर्फ मैंने उन्हें किस तरह दुनिया में रहना चाहिए, उनके मैनर्स, उनका जो नॉर्मल जीवन है वही बताया है। I did not even tell that. मैंने वो भी नहीं कहा। But he thought himself as very benevolent और वो खुद को बहुत महान समझता था and very man of very modern thoughts. और वो खुद को एक महान युक्तियों का महान विचारों का आदमी समझता था। And what Coleridge was listening to him very carefully, और जब कॉलरेज उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहे थे and he did not comment what he was saying, but listening him very carefully. और उन्होंने कुछ भी उस बात पर नहीं कहा, सिर्फ उनकी बात सुन रहे थे। And then what happened after he finished his talk? Coleridge told him that we will go to my backyard. और जब उनकी बात खत्म हुई तब कॉलरेज ने कहा